everybody and welcome to the world of food. First of all, I'd like to wish all the viewers a Merry Christmas and a Happy New Year. मैं हूँ आपकी food guide Nandini Vaid. तो चलिए without wasting any more time, let's start our food journey. आज जिस celebrity chef से हम आपको मिलवाने वाले हैं, he comes from an extremely reputed brand name, Vivanta by Taj. ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम सुनते ही यू एक्सपेक्ट नथिंग बट परफेक्शन आउट ऑफ देयर किचन्स और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है शेफ आनंदा सोलोमन को. Known to be down to earth, high spirited and extremely stylish, he is under the spotlight today. Check it out. I joined the Taj in '89. When I came back here in this hotel, I had an opportunity to launch the first Thai restaurant of its kind in the country. In this last, you can say, the journey of my career, I had enough opportunity to actually learn and showcase my skills. Born ordinary but living extraordinary. कुछ ऐसी ही स्टोरी है हमारे आज के esteemed शेफ की. He is the chief executive chef for Vivanta by Taj. उन्होंने इंडिया को दिया है एक authentic और बहुत ही delicious Thai restaurant. At the Rendezvous for a while before I was transferred to Fort Aguada Beach Resort, Goa, where I learned the art of exactly how to handle, Goan food and stuff like that. उनकी restaurant chains पूरे इंडिया में famous हैं. He is the most respected and most sought-after chef of all times, Chef Ananda Solomon. No one from my family is ever in this field of selling food or even anything close to food industry. By any standard, I had any inkling that I'm going to join the hotel industry. And within the hotel industry, there are many other spheres. You can either join the service, you can join the front office. But I chose, probably in those 3 years' time in my college days, that's the time I decided, I thought, yes, I think I can be a little better off in the kitchen. काजरगोड मैंगलोर में एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े आनंदा हमेशा से ही अलग थे. He never settled for ordinary. जब उन्होंने फूड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की, तब बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री को एक रियल प्रोफेशन माना करते थे. Those days, working in a hotel was not seen as glamorous as it's seen or made to believe today. It was a profession which was probably the last choice for a person to do, maybe, because working in a hotel in the society was not very well accepted. लेकिन आनंदा followed his heart and broke the notions. अपने इस elaborate career में आनंदा ने काम किया है बहुत से अलग अलग ब्रांड्स के साथ, अलग अलग कंट्रीज में. उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी एक्सपर्टीज दोनों की स्टोरीज नेवर एंडिंग हैं. हर कामयाब शख्सियत का सक्सेस मंत्रा होता है, बट आनंदा डज नॉट बिलीव इन सक्सेस मंत्रास. उनका मानना है कि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एफर्ट. See, there is nothing as being successful and unsuccessful in this trade. You got to keep on trying. Every day, you got to keep on experimenting every day. अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस से सीखने और एनरिच होने वाले आनंदा सोलोमन आज सक्सेस की पीक पे हैं. बट यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन एज ग्राउंडेड एंड एज हम्बल एज हिम. आनंदा सोलोमन स्पेशलाइज करते हैं फ्रेंच, थाई और कोंकण क्विजीन्स में. ये वर्ल्ड गोरमे समिट जीतने वाले अकेले इंडियन शेफ हैं. सन 2007 से 8 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बेस्ट शेफ के खिताब से नवाजा था. If you speak to anybody from the food industry about Chef Solomon, एक चीज सब आपको बताएंगे that his dedication and passion towards food is extremely inspiring. चलिए on that note, let's take a short break. I'll be right back. वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फूड. अब जिस फूड जॉइंट में हम आपको लेके जाने वाले हैं वो है कोलकाता के फूड लवर्स का अनडिबेटेबल फेवरेट. तो आप अगर दिल्ली से हो या मुंबई से और आपको बंगाली फूड पसंद है, देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट. वेल, हम बात कर रहे हैं 6 बालीगंज प्लेस की. लेट्स गो एंड हैव अ लुक एज टू व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस. 6 Baligans Place is a purely Bengali restaurant. यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है. A बहुत अच्छा meal and I very much enjoyed.
हम सबने कभी न कभी ऐसे पॉपुलर फूड जॉइंट्स के नाम तो सुने ही होंगे जो किसी गली या किसी शहर की पहचान बन गए। लेकिन आज कोलकाता के जिस रेस्टोरेंट में हम आपको लेके जा रहे हैं, वहाँ कहानी कुछ उल्टी है। ये एड्रेस इतना पॉपुलर है कि रेस्टोरेंट का एड्रेस ही बन गया उसका नाम। ये जो रेस्टोरेंट है 6 Balligans Place, this belongs to my maternal grandfathers, and this gentleman was a zamindar, and this house was built almost about 100 years back. Now, this house, when we were young, used to be called as 6 Balligans Place, and properly we used to refer to this place as, where are you going? We used to say that we are going to 6 Balligans Place. Now, when we decided to open this restaurant, we were thinking of many names, and suddenly it struck my mind, and I put it up to my colleagues that why don't we call this name as 6 Balligans Place, as it is popularly known amongst our relatives and friends. And this name caught on, and everybody agreed to it, and that's why for the very first time address has been given the name of a restaurant. 6 Balligans Place फेमस है अपने इंस्टेंटली कुक्ड डिलिशियस बंगाली फूड के लिए और यहाँ के एवर एक्सपेरिमेंटिंग फेस्टिवल मेन्यूज के लिए। साल में महीने भले ही 12 हो, लेकिन यहाँ पे एक साल में 13 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और हर फेस्टिवल लाता है एक नया स्वाद, एक नया एक्सपीरियंस। We started off with a Bengali and a continental cuisine because we were not sure whether the Bengali audience or the Bengali market was big enough for 80 cover Bengali restaurant. That is why we also had continental on the side. After a year passed, after almost 1 year, when we studied our records and studied our sales, we saw that 93% of the orders which we were getting, or the 93% of the sales, was Bengali. So we then decided to go for entirely a Bengali cuisine and Bengali food. The USP of this place, or the distinctiveness of this place, is that unlike other Bengali restaurants where the food is cooked in advance, we cook our food a la carte. यहाँ के शेफ्स अपने मेन्यू को डिस्क्राइब करते हैं एज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, इंग्लिश, डच, नवाबी और ईस्ट वेस्ट बंगाल के कई सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बना है यहाँ का वन ऑफ अ काइंड डाइवर्स मेन्यू। ट्रेडिशनल मच्छी राइस हो या बंगाली स्वीट डिश मिष्टी दोई, यहाँ आपको मिलेगी हर वैरायटी ऑफ बंगाली फूड इन इट्स ट्रू फॉर्म। हम लोग का सिग्नेचर डिश अगर बोलेंगे तो उसमें एक प्रॉन का है, चिंगड़ी माछे चीने कबाब, डाक चिंगड़ी जो एक प्रॉन पकाते हैं हम लोग कोकोनट शेल के अंदर, फिर माछे झोल, सिंपल फिश करी जो बंगाल का वेरी फेमस है, वो मस्टर्ड से होते हैं, डिफरेंट टेम्परिंग से फिश करी होते हैं, वो भी बहुत फेमस है और हम लोग का रेस्टोरेंट में भी वो सब बहुत ही फेमस है। हमारी सबसे बड़ी यूएसपी 6 Balligans Place में ये है कि हम आज तक ऑथेंटिक ही है। हम लोगों को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। The reason why we've not changed much of the decor and we've kept into the old decor of, or the old, we've not done much of structural changes, is for the very simple reason, because this oldness of this house is a charm by itself. The high ceilings, the thick walls is something which you don't get in today's modern house. That is why we try to keep it as it is, retain the old world charm. So the experience of a person coming out here is as if you are coming to a zamindar house to have an evening meal or a morning meal. देख के 10 साल होने को है, अभी तक एक भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जैसे घर 100 साल पहले बना था। इस रेस्टोरेंट को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कई अवार्ड से, जिनमें शामिल है टाइम्स लाइफ का बेस्ट बंगाली रेस्टोरेंट ऑफ बैंगलोर भी। Of course, we've got many awards, but the biggest award we have got is when people walk up to me and say that what a fine restaurant you've made. We went to your restaurant yesterday, everybody liked it. We had a great experience. That is the biggest award which I feel we've got. The success of this restaurant, I would say, is our passion for food. We have tried to recreate
recipes which are dying down. With its ever-growing popularity, पिछले 10 सालों में 6 Baliganj Place has achieved to open 5 branches in Kolkata and Bangalore. We started this restaurant in 2003. This restaurant started as a Bengali and a continental restaurant. After a year, it changed over to a completely Bengali restaurant, and after that, we have not looked back. Because of the success of this restaurant, we opened another 6 Baliganj Place in Indiranagar in Bangalore, after which we opened another restaurant in Calcutta at Salt Lake. Presently there are 2 more restaurants, one in Kosba, one in Behala, which is of the same name with a little bit of differentiation called Thalis. So this restaurant chain 6 Baliganj Place has really done well for us, and we plan to take it all over India, and if by the grace of God, we can also take it to places out of India as well. 6 Baliganj Place है कोलकाता का most highly acclaimed Bengali restaurant. यहाँ की टाइमिंग्स हैं 12:30 PM to 3:30 PM for lunch and 7 PM to 10:30 PM for dinner. Overall हम इस जगह को देंगे फूड के लिए 4 on 5, ambience के लिए 3.5 on 5 और सर्विस के लिए 4 on 5. हर रेस्टोरेंट की कोई सिग्नेचर डिश होती है या कोई स्पेशलिटी, लेकिन 6 बालीगंज प्लेस में कहा जाता है कि उनका पूरा मेन कोर्स मेन्यू बहुत ही स्पेशल है. वेल, द डे यू आर प्लानिंग टू बिंज, दिस इज द प्लेस फॉर यू. नाउ लेट्स टेक यू टू द यंग कूल हिप सिटी ऑफ पुणे, जो जाना जाता है अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए. जिस रेस्टोरेंट में हम जाने वाले हैं वो है इंडिया का मोस्ट रिकमेंडेड एंड ओल्डेस्ट पारसी फूड जॉइंट दोराब जी. यहाँ का मेन्यू जितना कंसाइज है उतना टेस्टी भी. हैव अ लुक. ये एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने चालू किया था इन द ईयर 1878. It's all Parsi dishes, totally Parsi, absolutely. अब भी कोलसे के ऊपर ही खाना बनाते हैं. हमारी लाइफ में ट्रेडिशंस और लिनिएज की एक अहम जगह होती है, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहते हैं. ऐसे ही वैल्यूज के साथ सन 1878 से चला आ रहा है मुंबई का ये लैंडमार्क फूड जॉइंट दोराब जी एंड सन्स. आज इस रेस्टोरेंट को रन कर रही है दोराब सोराब जी की 4th जनरेशन. ये एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने चालू किया था इन द ईयर 1878. एंड ही स्टार्टेड एज अ चाय का दुकान. देन ही रियलाइज के डिमांड है कि खाने का है, एंड वो पारसी फूड जो चालू किया तभी उन्होंने अबाउट 6 महीने बाद में, और तब से ये ऐसे ही चलते आ रहा है. दोराब जी आपको सर्व करता है ऑथेंटिक एंड हेल्दी पारसी डेलिकेसीज इन अ वेरी मिनिमलिस्टिक एंड सटल एनवायरनमेंट. ये एक्चुअली 3 घर थे पहले, तो उन्होंने 3 घर को रेंट पे लिया और वो साथ में ज्वाइन करके एक छोटी सी दुकान जैसे चालू किया. वो घरगुती किचन बोलते वैसे, और तब से ये ऐसे ही है. और हमने उसको रेनोवेट भी नहीं किया है ज़्यादा, क्योंकि इट्स लाइक अ ओल्ड वर्ल्ड चार्म. हमारा एक ही मोटो है कि आदमी खाने की तारीफ ज़्यादा करे, डेकोर तो सब बाजू मिल जाएगा. चाय कॉफी की स्टॉल की तरह शुरू हुई ये जगह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गई एक पारसी फूड जॉइंट में, और सबको यहाँ का टेस्ट इतना पसंद आने लगा कि यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स की कई पीढ़ियों के लिए ये जगह बन गई एक फैमिली ट्रेडिशन. मेरे डैडी के टाइम से जो आ रहे हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से जो आ रहे हैं. वी हैव पीपल ऑफ द एज ऑफ ऑलमोस्ट 80-90 जो इधर आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है अंदर मिलने के लिए. द कस्टमर्स इज़ लाइक अ फैमिली टू अस. जो रेगुलरली आते हैं, अबाउट 30-40 साल से वो एक ही डिश खाते हैं. हम इनफैक्ट वी टेल देम कि आज कुछ अलग तो भी लो, तो बोलते कि नहीं, वो जो खाए वही चाहिए. पारसी फूड बेसिकली इज़ कि उसके अंदर मसाला बहुत कम रहता है और तेल भी बहुत कम रहता है. तो जब आप खाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपने इतना खाया है. मीन दैट इनडाइजेशन ऐसे कुछ होता ही नहीं है. इट्स वेरी लाइट एंड गुड टू द पैलेट एंड वेरी लाइट टू द स्टमक. यहाँ की धानसाग दाल जो है, द धानसाग इज़ वेरी फेमस. देन द लगन्नू कस्टर्ड, बट इट्स ऑल पारसी डिशेज. और संडे को हम पात्रानी मच्छी बनाते हैं, और सबसे खास हमारा दम बिरयानी है. और अब भी कोलसे के ऊपर ही खाना बनाते हैं.
यहाँ के लोकल कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल हैं 80 to 90 इयर्स के लोग भी और कई सारे इंडियन सेलेब्स भी। हमारे वहाँ जो कस्टमर आते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के आते हैं, सबसे जो अमीर भी रहते हैं और सबसे जो गरीब भी रहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राइसिंग है इज क्वाइट रीजनेबल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स। यहाँ खाना खा के जितनी वार्मथ दोराबजी के कस्टमर्स फील करते हैं उतनी ही वार्मथ है यहाँ काम करने वाले स्टाफ में। एक्चुअली वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमारा स्टाफ जो है बहुत ही जुना है। लाइक वी हैव पीपल इन द किचन एंड द सर्विंग एंड ऑल्सो ऑन द काउंटर। उन्होंने अबाउट बचपन से उन लोगों ने चालू किया है ना, हमारे घर से चालू किया है काम, वैसे होता है। ऑलमोस्ट 30 साल 35 साल 25 साल इतने पुराने अभी तक हमारा जैसे फैमिली है वैसे ही है वो। इस रेस्टोरेंट के यूं तो कई फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस जो इस रेस्टोरेंट और यहाँ के कस्टमर्स के बॉन्ड को सही मायनों में समझता है वो है ये। There was a gentleman who I catered for his 50th golden anniversary. And he was almost I think 75 plus or 80. So he called me home. He said कि बेटा तुम घर पे आके मेरे ऑर्डर लो क्योंकि मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने मुझे एक जुना मेनू कार्ड दिखाया, उनके शादी का मेनू कार्ड जो मेरे ग्रैंडफादर ने उनकी शादी किया था तभी 50 साल पहले, और तभी प्राइसिंग था पर पर्सन का ₹1 ही चार्ज। तो उन्होंने सेम मेन्यू वापस बोला कि ये मुझे सेम रिपीट ही चाहिए, जो भी वहीं सर्व किया था ये सर्व करना है। बोला प्राइस तो नेचुरली अभी उसमें फ़र्क तो हो जाएगा। और फंक्शन होने के बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि इट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड ईटन फॉर हिज वेडिंग, which was actually very nostalgic for me because to keep up to the tradition is very difficult, and the expectation is always there to you're always being compared. So उन्होंने बोला कि जो मैंने तभी खाया था सेम स्वाद अभी भी है। पूना के लैंडमार्क दोराबजी एंड सन्स लोकेटेड है दस्तूर महर रोड कैंप एरिया पूना में। यहाँ आपको मिलेगी पारसी फूड की इमेंसली टेस्टफुल वैरायटी, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। अकॉर्डिंग टू अस दिस प्लेस इज अ 4 on 5 on food, 3 on 5 in ambience and 3.5 on 5 in service. Parsi food may not be that popular in our day-to-day lives, lekin once you eat at Dorabji, you will keep coming back for more. On that note, let's take a short break. Welcome back to the world of food. अब जिस रेस्टोरेंट में हम आपको लेके जाने वाले हैं that offers you a huge variety of international food, जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। मुंबई का फेमस फूड जॉइंट नूडल बार। Well, let's go and have a look at this place because it offers you an option to prepare your own bowl of food. नूडल बार खुला है 2002 में। Flavors of Asia. That is how I would like to describe noodle bar. We try to get all those flavors, international flavors of noodles in particular, under one roof on the noodle bar menu. It's not a regular Chinese restaurant, but if you want Far Eastern flavors, if you want Pan-Asian flavors, then Noodle Bar is a place where you should visit. बार में अलग अलग टाइप के बेवरेजेस मिलते हैं, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स। सिमिलरली नूडल बार में you get a variety of noodles. We try to be as authentic as possible. नूडल बार फेमस है अपने गेस्ट्स की चेंजिंग नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। हर महीने, हर साल ये अपना फूड में ऐड करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स लाइक फूड फेस्टिवल्स, मेन्यू चेंजेस एंड मच मोर। The customer expects a lot of change, a lot of new dishes to come in, variety चाहते हैं। That is when we bring in festivals. Festival हमारा अबाउट 1 महीने के लिए चलता है कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसकी तैयारी 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। हमें रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च के बाद ट्रायल्स करने पड़ते हैं, ट्रायल्स में लगातार दिन रात हमें वही खाना पड़ता है। रेस्टोरेंट का मेन्यू हम 2 साल में एक बार चेंज करते हैं। जो चीज यहाँ की स्पेशलिटी और यूएसपी दोनों मानी जाती है वो है इनका टॉस इट अप नूडल बोल। अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गेस्ट चूज कर सकते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स और बना सकते हैं एक सेल्फ क्रिएटेड नूडल मिक्स। 2002 में हमने टॉस इट अप इंट्रोड्यूस किया था एंड आज तक हमारे मेन्यू में है।
नूडल्स के साथ में वो सॉस क्या क्या वैरायटी है वो चूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स या मीट के वैरायटी चूज़ कर सकते हैं, एंड टॉस इट अप बाय इटसेल्फ इज अ मील। खाना, ड्रिंक्स, एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। वी हैव ऑलवेज एंजॉयड द फूड। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आते हैं और विद फैमिली इट्स रियली गुड। आई एम रियली ऑलवेज हैप्पी गोइंग बैक। As and when we get feedbacks from our customers, we try to incorporate it. हम मेन्यू में डालने की कोशिश करते हैं, and that is growth for us. We've been coming here since a long time and we love this place, we love the food, the staff is really friendly, the ambience is really good. पिछले 11 साल में Noodle Bar has evolved a lot in terms of flavor, in terms of ambience, in terms of service and service style. I love the place because of the great food. Actually, the service is the best part, very personalized. The guys know me from a long time, so I keep coming back. The food at Noodle Bar is excellent. My husband and kids love this place and that's why we keep coming here over and over again. मुंबई के वेरियस पार्ट्स में इस रेस्टोरेंट चेन की कई ब्रांचेस सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं। नूडल बार पार्ट है ब्लू फूड्स का, जिसके कई सारे यूनिक रेस्टोरेंट्स और चेन्स पॉपुलर हैं। स्पेगेटी किचन, बॉम्बे ब्लूज, नूडल बार, स्पून, कॉफी बीन्स एंड टी लीव्स, कॉपर चिमनी। कस्टमर को आपका खाना अच्छा लग रहा है तो इससे बड़ा अवार्ड कुछ हो नहीं पाएगा। नूडल बार फेमस है अपने थाई और चाइनीज क्विजीन के लिए। इस मुंबई बेस्ड रेस्टोरेंट चेन के पॉपुलर आउटलेट्स हैं बैंड्रा वेस्ट और फीनिक्स मॉल लोअर परेल में। आज का एपिसोड काफी फुलफिलिंग था। We met an inspiring chef, visited some delightful restaurants. I had a great time, did you? Don't forget to write into me at wof@znetwork.com and also follow us on Facebook. So until next time, this is Nandini taking your leave from the world of food. A bahut acha meal and I very much enjoyed. It's all Parsi dishes, totally Parsi, absolutely. Flavors of Asia. That is how I would like to describe Noodle Bar. I would like to travel the distance. I would not like to be seen as, now I'm tired, okay, now anchor, then let's eat more.